بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مقبلا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كل زبان خاموش نہ رہے بابا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين القلوب المؤمنين سبحان الله برادران اسلام اللہ رب العالمین بھی حمد و ثنا باری کل فخر الرسول تعالی سبول ختم الرسول مولائی کل سبحان الله نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ باد کرامی قدر معزز سامعین کرام واجب الاحترام اللہ تعالی کی حمد و ثنا باری کل فخر الرسول تنائے سبل ختم الرسول مولائی کل سیدی مرسلام آپ سبحان اللہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ سیدی مرسلام شفیع مجرمان شریع رخ ماہ تاباں شہنشاہ ارض و سما والی حد و سرا شافی روز جزا جلوہ جان جانا حضرت محمد مصطفیٰ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے حد درود و سلام کے بعد میں جتنے بھی معززین اور دور و نزدیک سے بالخصوص بسط احترام کے لائق علماء کرام ذویل احتشام تشریف فرما ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں موسم نے تھوڑی سی انگڑائی لی اور اس کے نعم البدل اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اپنے گھر میں موقع عطا فرمایا سبحان اللہ حضرات ذی وقار میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے بڑی معروف اور مشہور آیت مقدسہ اسی پر گفتگو کروں گا اتار بھی کتنے بکر
آپ کی توجہ چاہوں گا، جنہوں نے سننا ہے وہ آگے آتے ہیں، وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جج صاحب نے بڑا وسیع پیمانے پہ انتظام و اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کا یہ انتظام اہتمام انصرام اپنی بارگاہ ربوبیت احدیت و سمدیت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آپ کے لیے ہم سب کے لیے یہی محفل پاک قیامت والے دن وسیلہ نجات بنا، آمین۔ میں نے آج بہت سوچا کہ میں کس لفظ پہ گفتگو کروں، لیکن کچھ تھوڑی سی تار جو ہے وہ قاری رفیق صاحب نے سٹیج پر چھیڑی اور میرے دماغ نے فیصلہ کیا کہ آج اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، سبحان اللہ۔ جس بندے کو سمجھ آئے وہ ذرا میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے، جس کو نہ سمجھ آئے، اور یہ بات جو شور ہے یہ خاموش کروا دے، بڑی مہربانی، بچوں کا شور بند کروا دے، کیونکہ اب کوئی چیز جو ہے وہ حرکت میں نہ آئے، ساکن ہونی چاہیے۔ حضرات ذی وقار عرض کر رہا ہوں، قرآن پڑھا ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ میں نے جو آئے مقصد تلاوت کی ہے، پڑھے لکھے احباب علماء کرام جانتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ میرے مصطفیٰ کی تعریف میں ہے، سبحان اللہ۔ حرف یا پہ گفتگو کروں، حرف ندا ہے، بڑی وسیع گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایھا النبیوں پر گفتگو کروں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ضخیم موضوع ہے، اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ لفظ انہ پہ گفتگو کروں، یہ طویل موضوع ہے۔ ارسلناک کا کاف ضمیر خطاب پہ بات کرتا رہوں تو تب بھی یہاں بات کافی لمبی ہو سکتی ہے۔ شاہدن حاضر و ناظر، یہ تو ہمارا فیورٹ موضوع ہے جی۔ ومبشرن، خوشخبری سنانے والا، ونذیرن، ڈر سنانے والا، وداعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجم منیرا، لفظ سراج پہ گفتگو کروں، چمکتا ہوا آفتاب۔ منیرا کے معنی بھی وہی ہیں کہ منیرا کے معنی بھی چمکتا ہوا، لیکن یہاں منیرا کے اوپر جو دو تنوین ہیں، یہاں پر علامہ خفاجی فرماتے ہیں التنوین للتعظیم والتکثیر، فرمایا یہاں تنوین تعظیم تکثیر کے لیے ہے۔ فرمایا کہ سن لو، اللہ نے مصطفیٰ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا، لیکن سورج جب ڈوب جاتا ہے ساری چمکتی چیزوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن یہ منیر راہ اس نے ایسا چمکایا ہے جس پر بھی نگاہ پڑی، جو ذرہ جو ہے نگاہ مصطفیٰ کے نیچے آیا ہے، قیامت آ سکتی ہے، وہ آج بھی سیدنا بلال نظر آتا ہے، آج بھی ابو بکر ہے، صدیق اکبر آج بھی صدیق اکبر ہے، عمر آج بھی عمر ہے، فاروق اعظم آج بھی فاروق اعظم ہے، عثمان ذوالنورین آج بھی ذوالنورین ہے، علی آج بھی شیر خدا ہے۔ بے ذر پہ نگاہ پڑی، ابو ذر آج بھی ابو ذر ہی نظر آتا ہے۔ اسی وقار یہ سراجم منیرا، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کیا بات! رب عزیز وقار قاری صاحب فرمانے پنجابی کوشش کروں گا، کہیں پنجابی کہیں اردو، اور اگر کہیں پھر پنجابی میں نہ آ سکے اردو آ جائے تو پھر آپ ہی برداشت کیجیے گا۔ چلو میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں کہ آج خطاب نہیں ہوگا، آج میں صرف آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یا
تو آ کر کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ کے دیوانے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں. ہم تو عاشق ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی بھی مشکل پڑے تو ہم یہاں سے آواز دیتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ. آپ نے ابھی آل سنت کا ایک بہت بڑا نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یارو اللہ دی قسم ہے سانو رب نے چنگا ایم دیتا ہے لبیک یا رسول اللہ. تے جے ہن بھی اسی نعرے نہ لائیے تے ہن جے سپورٹ تے ووٹ دئیے تے پھر افسوس ہے، پھر نعرہ لا لبیک میرا. کیا بات. چوری شلاوت صاحب آپ کے بڑے سماجی آدمی ہیں، لیکن آج یہ جو نعرہ ہم نے لگایا ہے یہ ایم پی اے تو دیا ہی ہے، لیکن مصطفیٰ کے صدقے میں سب کچھ ملے گا. لیکن آج کا نعرہ ہمیں اللہ نے مصطفیٰ عطا کیا ہے، اس محبوب کی آمد پر یہ نعرہ رہے گا. اور جملہ سن لو، حرف ندا. حضرات سی وقار ہم تو جب بھی مشکل پڑے کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. حضرات سی وقار میں جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہم پر فوراً انگلی اٹھتی ہے یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یا رسول اللہ کہنے والے فلاں ہیں فلاں ہیں. میں کہتا ہوں اگر یا کہنا شرک ہوتا تو اللہ قرآن میں اپنے نبیوں کو یا کہہ کر کبھی نہ بتاتا. اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر یہ یا کہنا شرک ہوتا اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتا یا نُحْبِتْ بِسَلَامٍ مِنَّا. اگر یہ شرک ہوتا تو خدا کبھی نہ فرماتا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. میں نے کہا یا کہنا شرک ہوتا کبھی اللہ نہ فرماتا یا زکریا ربا انا نبشرك بغلام اسمه یحییٰ. اگر شرک ہوتا کبھی خدا نہ فرماتا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. اگر یا کہنا شرک ہوتا اللہ رب العالمین کبھی نہ فرماتا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اگر یہ یا کہنا شرک ہوتا اللہ رب العالمین کبھی نہ فرماتا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. کیا بات کیا بات. اگر یہ یا کہنا شرک ہوتا، میں نے کہا ہم تو حضور کو یا کہتے، اللہ نے تو آپ کو بھی کہا قلنا یا نار کونی وسلاما علی ابراہیم. میں نے کہا یا حرف یا. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں بھائی یا کہنا شرک. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرے نبی تھے، اللہ نے نبیوں کے نام بھی لیے یا بھی کہا. لیکن جب باری آئی نا محسن انسانیت مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، یتیموں کے والی کی، بے کسوں کے کس کی، بے سہاروں کے آسرے کی، حضرات سی وقار جب باری آئی محبوب رب العالمین کی، اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو پکارا ضرور، یا کہہ کر پکارا لیکن نام لے کر نہیں پکارا. کسی مقام پہ فرمایا سنیے سنیے اور بھائی ساؤنڈ والے 1 منٹ ٹھہر دو، بس کر دو یار. 1 منٹ ڈبے نہ لیں یار، موٹو پہ بیٹھ جائے کتاب انہوں نے لا لی. پھر بھائی 1 منٹ بیٹھ جائیں، بس بیٹھ جائیں، اس کے بعد لگانا ساؤنڈ. اب میری تقریر شروع اس میں نہیں لگے گا، بیٹھ جائیں بعد میں لگے. آج بغیر ساؤنڈ تو چلن دو. کیا بات. اب سلسلہ چل نکلا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں. درمیان میں وہ ذرا پانی چل رہا ہو نا تو اس میں کوئی چیز ڈال دیں، وہ ذرا پانی کا وہ مزہ نہیں رہتا. حضرات بڑی توجہ، بیٹھ جائیں بس، کام بھی اپنا یہ چلیں گے آپ کے ساؤنڈ انشاءاللہ. آپ بیٹھ جائیں، صرف ادھر رکھ دیں، سٹینڈ لگا دیں، رکھ دیں، بس بیٹھ جائیں. آپ تشریف رکھیں، آپ نہ کھڑے رہیں. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی.
बस अब ये आने जाने का सिलसिला नहीं रहना चाहिए, आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रहनी चाहिए। हम इस किसी लाइट के और किसी बत्ती के, हमारा जो है इश्क वो मोहताज नहीं है। इंशाल्लाह ये लाइट है तो तब भी सीने में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी है। हम मोहताज थोड़े इन चीजों के, ये तो फानी चीजें हैं। और सुनिए यार, बैठ जाओ, मैंने कहा मेरी जान बैठ जाए, कोई 1 मिनट बैठ जाओ, कोई के लिए बैठ जाओ, इसी जगह पे बैठ जाओ। आपने भी चूंकि पहली मर्तबा आप मेरे सामने आए हैं, मजाज नहीं समझा आपने। हजरात तवज्जो चाहूंगा, मैंने अर्ज किया है अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा पाक का नाम तो नहीं लिया, या कहकर पुकारा। किसी मुकाम पर फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, सुभान अल्लाह। किसी मुकाम पर फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलील, सुभान अल्लाह। किसी मुकाम पर फरमाया या अय्युहर रसूल, सुभान अल्लाह। किसी मुकाम पर पुकारा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। हज़रत इसी वकार जब बारी मेरे मुस्तफ़ा की आई, अल्लाह ताला ने किसी मकाम पे पुकारा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को या कहकर पुकारा, लेकिन नाम लेकर नहीं। कभी रसूल कहा, कभी नबी कहा, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मुदस्सर कहा, कभी मुजम्मल कहा, कभी यासीन कहा। हसीन और जमील अलकबात देकर मेरे मुस्तफ़ा को रब ने आवाज दी ताकि रहती दुनिया तक ये बात कायम रह जाए। दुनिया वालों, जब भी मेरे मुस्तफ़ा को पुकारो, नाम लेकर नहीं पुकारना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह कह के पुकारना। वक्त की किल्लत के तहत मैंने अर्ज किया, सिर्फ आज तर्जुमा ही पेश करना है, तकरीर बाद में करेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी मौका मिला तो। हज़रात तवज्जो चाहूंगा, अय्युहन नबिय्यु, मैंने कहा उलमा बैठे, ये अकीदा के लिहाज से, इबादत के लिहाज से, तकवा के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, हर लिहाज से ये मुझसे अफजल व बेहतर है। मैं अदना सा हूँ, ये सारे जो हैं ये सब मुझसे अफजल है, मैं अदना हूँ, मेरी क्या औकात है। ये तो इस करम के कहाँ तक काबिल के हुजूर आपकी बंदा परवरी, ये तो हुजूर की मेहरबानी है। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, अय्युहन नबिय्यु। हर मकतबा फिक्र जिसका चाहे कुरान उठा ले, वो आप उठाना चाहें तो शाह अब्दुल कादिर को उठा ले, शाह रफीउद्दीन को उठाएं, अशरफ अली थानवी को उठा ले, वहीद और दमाग़ मुक़ल्लद वहाबी को उठा ले, जिसका भी तर्जुमा उठाए, हर किसी ने यही तर्जुमा किया, अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी, ऐ रसूल, ऐ पैगंबर। मैं पूछना चाहता हूँ, मजाजी माने वहाँ लिए जाते हैं, यहाँ कोई आर्जा हो, यहाँ कोई रुकावट हो, यहाँ आर्जा भी नहीं, कोई रुकावट भी नहीं, फिर मजाजी माने या कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका जनाब जी किसी डिक्शनरी में, किसी लुगत के अंदर माना नहीं बनता है। मैंने कहा चलो इनसे नहीं पूछते, जनाब बरेली के शहंशाह आला हज़रत अज़ीम बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजद्दिद मियात हादिरा पुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा जनाब इमाम अहमद रज़ा आपकी बारगाह में चलते हैं। मैंने आलम तख़य्युलात में आपकी चौखट में दस्तक दी। मैंने कहा बाबा बताओ लफ्ज़ नबी का तर्जुमा क्या है? आपने फरमाया कल का इलाज करवाओ, दुनिया कहेगी ये तर्जुमा बरेली से लेकर आ गए हैं। मैंने कहा हजरत फिर बताइए ये तर्जुमा किसने किया है? और मैं आज से कई 100 साल पहले ये तर्जुमा हो चुका है, काजी अय्याज मालिकी ने किया है। और मैं हुवन नबियो अलल इतलाई अलल गैब, और मैं नबी वो होता है जो गैब की खबरें दे। सुभान अल्लाह। मैं नबी वो होता है जो गैब की खबरें देता हो। मैं अभी अन्नबी नबा उनके मसले में नहीं जाने लगा।
यहाँ कोई सर्फी नावी गुफ्तगू नहीं करने लगा, यहाँ सारे सर्फ जानने वाले बैठे हैं, मुझे पता है। लेकिन हजरात सी वकार, मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, एक बात तवज्जो से सुन ले। फरमाया मेरा नबी वो नबी है जो गैब जानता है, गैब की खबरें जानता है। अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ पर बुखारी न पढ़ूं। सुभान अल्लाह। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर मैं बुखारी मुस्लिम का तारफ भी पेश करूँगा, लेकिन वक्त की नज़ाकत के तहत आप सिर्फ बुखारी की हदीस पाक की बतौर तबर्रक सिमात करें। मेरे महबूब अलैहिस्सलातो तस्लीम के दीवानों, शम्मा रिसालत के परवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं। कैसा जानते हैं, कितना जानते हैं, कहाँ तक जानते हैं? चलो मैं इस बात को अभी यहाँ पर थोड़ी देर रोक देता हूँ, थोड़ा सा तर्जुमा आगे लेकर चलता हूँ। लफ्ज़ नबी के बाद क्या आता है? इन्ना। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो इन्ना, अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन्ना क्यों लगा दिया? या अल्लाह क्यों लगाया? मेरा रब फरमाता है मैंने इसलिए लगा दिया है, मैंने कहा कि मौलवी तेरी तहकीक इतनी बड़ी नहीं जितनी तेरे रब की तहकीक है। तेरी तहकीक की जरूरत नहीं, इन्ना मैं खुद तहकीक करके मुस्तफा को भेज रहा हूं। मेरी अकल की परवाह इतनी नहीं जितना मुकाम मेरे मुस्तफा का है। मेरे अकल के परिंदे की परवाह छोटी है, मुकाम मुस्तफा इससे भी आला व बरतर है। तो मेरे मुस्तफा के मुकाम को नहीं जान सकता। इन्ना और 1450 साल तो गुजर गए कारी रफीक साहेब, आज तक कोई ये नहीं बता सका कि हुजूर की उंगलियों से चश्मे कैसे जारी हुए। तेरी ताकीद क्या है? फरमाया इतनी सदियां बीत गई, कोई ये नहीं बता सकता कि उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज कैसे वापस लौटा। कोई ये नहीं बता सकता कि जनाबे बंदा आसमान के चांद के टुकड़े कैसे हुए थे। कोई ये नहीं बता सकता कि उनमें माबद की बकरी के ऊपर हाथ रखा और वहां पे खून की नारे कैसे जारी होगी थी। आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि आमना के लाल ने प्याले के अंदर हाथ रखा, उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। कोई ये नहीं बता सकता अबू जाल की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा कैसे पड़ा था। बार बार कारी सर फरमा रहे शेर मोहम्मद के शेर पढ़ना, मैं पढ़ूंगा जरूर पर आखिर पे पढ़ूंगा, क्योंकि मैं उस नगरी से आया हूँ। मैं इंशाअल्लाह पढ़ कर जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे सुनो फिर मैं आपको सुनूंगा। पहले मुझे सुनना होगा। मैं आपके ऊपर कुछ देर के लिए बोझ जरूर हूँ, आप थोड़ी देर बर्दाश्त फरमाइएगा, ये आपकी मेहरबानी होगी। हज़रात सी वकार में अर्ज कर रहा हूँ, इन्ना अल्लाह ने फरमाया मैं मौलवी जी ये तहकीक मैं करके गलीए जे गल अकल च आ जावी तावी मन लवी, जे ना आवी ते तावी मन लवी। जे तेरी अकल च आ जावे तावी मन लवी, जे ना आवे। और सल्लाका उलमा बैठे हैं, मुझे यहाँ बड़ी एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी है। अरसलनाका काफ समीर खिताब है, जैसे अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका सुभान अल्लाह ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका सुभान अल्लाह वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका सुभान अल्लाह वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका सुभान अल्लाह वला सौफा युतीका सुभान अल्लाह वरफ़अना लका। भाई मैं यहाँ पर दलाल देता चला जाऊँ, बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं कुरान की आयात बतौर तबर्रक मैंने पढ़ी हैं। हज़रात सी वकार रब ने फरमाया मैं यार नु कले को उसके पास ले जाओ, वो बंदा मेरे पास जाए, मेरी मिसाल को समझना, चूंकि अल्लाह ने दीन मिसालों के साथ समझाया है। जब वो रुका पहुँचे वहाँ पर, मैं रुके को बिस्मिल्लाह करके उठाऊँ,
चूमूं माथे पे, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये जी रुका आया है मेरी तरफ, मेरे दोस्त का आया है। लेकिन जो इन्होंने जिस बंदे को भेजा, मैं उसे बैठाऊं भी ना, उसे पूछूं भी ना, उसकी तो कोई इज्जत भी ना करूं और उसकी खैर खैरियत भी ना पूछूं, वो जाकर ये बताए कि जिसके पास आपने भेजा था, रुका तो बड़ा चूम रहा था, लेकिन जिसको आपने भेजा है उसका तो कोई एहतराम नहीं था, उसका तो कोई एहतराम नहीं था। भाई कुरान को उठाकर तो चूमते रहो, आकाम को सर पे बैठाकर जनाब जी गली गली घूमते रहो, लेकिन जिस मुस्तफा को अल्लाह ने भेजा है, मेरे रब ने ऐलान किया, ये इबादतें, ये रियासतें मैं बाद में पूछूंगा, पहले ये पूछूंगा व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने तो पहले ये पूछना मेरे यार की इज्जत कितने की है, मेरे यार का मुकाम कितना है, मेरे मुस्तफा का मर्तबा तुम्हारे दिलों के अंदर कितना है, मेरे मुस्तफा की शान तुम्हारे दिलों के अंदर कितनी है। क्या उसे नबी समझते थे, नूर समझते थे, या अपने जैसा बशरी समझते रहे? मैं तो वो पूछूंगा। हज़रात इसी वक़्त वक्त की किल्लत के तहत में बात बहुत आगे लेकर जा, मैंने चूंकि आज का तर्जमा करना है, मुझे लगता है आयत ही लंबी हो रही है, तर्जमा ही ना लंबा हो जाए, तकरीर अगर शुरू होगी तो फिर कब ये ख़त्म होगी। बस मैं इतना असल बात ये है कारी साहब, ये मेरे पास जो सौदा है ना, ये माल है परचून का नहीं, थोक का माल है, लेकिन ये मिलता है हुजूर फरीद की चौखट पे। हाजी खाजा कुतुब फरीद, क्या बात, हज़रात तवज्जो चाहूंगा, मैं ये लाउड स्पीकर के बगैर तकरीर नहीं ज्यादा करता, ये आपके ज़ौक़ को देखकर कर रहा हूँ, वरना मेरा भी माइंड ये था कि थोड़ी की देर के लिए बात शायद कर दें, चौधरी साहब की मिन्नत कर लेंगे और दुआ खैर करके हम चले जाएंगे, लेकिन आपका ज़ौक़ ये कह रहा है मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ। अरसलना का शाहिदन, उलमा बैठे शाहिदन। अब मैं अगर इजाजत हो तो एक दो इबारतें न पढ़ूं। सुभान अल्लाह। मुफरदातुर राग़िब इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर फरमाया अश्शहूदु व शहादतुल हुज़ूर मअल मुशाहदति इम्मा बिल बसर औ बिल बसीरा। सुभान अल्लाह। साहिब तफसीर जुम्मल ने लिखा है इन्ना अरसलनाका सुभान अल्लाह शाहिदन अला मन बुइस्ता इलैहिम तरावालुम व तुराकिबु अमालुम व तुशाहिदु अमालुम व ततहम्मल व तुअद्दी बिहा सुभान अल्लाह इला यौमिल क़यामा। और मैं अल्लाह ने मुस्तफा को हाजिर नादिर बनाकर भेजा है, शाहिद बनाकर भेजा है, गवाह बनाकर भेजा है। और सुनिए सुनिए जुमला सुनिए, और मैं क़यामत वाले दिन महबूब हर उम्मत के, हर उम्मती के हर अमल की गवाही मेरा मुस्तफा। मैंने ये नहीं कहा कि इस उम्मत की बात नहीं की हुजूर, मैं अर्ज कर रहा हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम हर उम्मत के उम्मती के हर अमल की गवाही मेरा मुस्तफा देगा। तो पता ये चला कि गवाह तो वही होता है जो सामने हो, जो देख रहा हो, दूसरा बंदा गवाही नहीं दे सकता। एक बंदा आंखों से नबीना हो, वो सुन रहा हो, वो अदालत में जाए, जी आपने देखा, ऐनी शादी गवाहों की जरूरत होती है, आपने देखा, वो कहते हैं मैं देख तो नहीं सकता था, सुन रहा था। अदालत कहेगी जाओ जनाब आपकी गवाही काबिल कबूल नहीं, आपने तो देखा ही नहीं, आपने अच्छा जी चलो आपने देखा, वो कहते हैं मैं कानों से बहरा था, देख रहा था कुछ झगड़ा हो रहा था। वो अदालत कहती जाओ तुम्हारी भी गवाही कबूल नहीं, इसलिए कि तुम सुन नहीं सकते, लेकिन मेरा मुस्तफा तो वो है, शाहिद है। मैं फिर जुमला कह रहा हूं, शाहिद है मेरा मुस्तफा। और कहां तक शाहिद है मैं बता देना चाहता हूं, हाजिर और नादिर है। मैं सादा लफ्जों में अपने जवानों को सबक पेश करना चाहता हूं। अगर कोई पूछे कि तुम हाजिर नादिर करते हो, इस अकीदे की डेफिनेशन क्या है,
उसे बता दो हादिर उसको कहते हैं जहाँ तक उसकी कुव्वत सिमात कम करे, नादिर उसको कहते हैं जहाँ तक उसकी निगाह काम करे। अब कुरान भी उठाओ, हदीस भी उठाओ, तुम्हें पता चल जाएगा मेरा नबी सुनता कितनी दूर से है और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनता कितनी दूर से है और देखता कितनी दूर से। कितनी दूर से है। अभी मैंने कोई तर्जो तरन्नम नहीं शुरू किया, चूँकि मैं आयत का तर्जमा कर रहा हूँ। अभी तर्जमा मुकम्मल होगा फिर तकरीर की तरफ लौटेंगे, फिर शेर भी पढ़ेंगे, चूँकि मैं चिश्ती फरीदी हूँ। असी देख करने भाई पुत्र किसी बेजौक बंदे दे गवांड कबर भी नहीं होनी चाहिए। खुश बंदे दे गवांड दे बंदे दी बोलो ना कबर भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह बात आगे लेकर चलूंगा, लेकिन ये मैंने अपनी कौम को ये अकीदा देना है, अकीदा देना है। मैं ये कहता हूँ कि सारी कौम शेरां ते लग गई है। खुदा दा वास्ता जे शेर कोई अकीदा नहीं होता, ये दलील नहीं होंगे, कुरान और हदीस दलील होता है। शेर तो हमारा ज़ौक है ना, ज़ौक है। उलमा बैठे हैं इस बात की तायद करेंगे। लेकिन हज़रात मैं आगे बात करना चाहता हूँ, मेरा नबी देखता कितनी दूर से, सुनता कि आओ बुखारी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, बुखारी पढ़ते हैं, किताबुल आज़ान, बाबुल सलात। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, इसलिए सबसे गुलाम को आगे बुलाया, फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल तरौना क़िबलती अहुना वल्लाहि मा यख्फा अलैया रकुकुम वला खुशूकुम इन्नी ला अराकुम मिन बराइ ज़हरी। सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल समझ नहीं आई आपको, मैं हदीस दोबारा पढ़ देता हूँ। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल तरौना क़िबलती हाहुना वल्लाहि मा यख्फा अलैया रकुकुम वला खुशूकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी। महबूब फरमाते हैं मेरे गुलाम तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं मुस्तफ़ा का चेहरा सिर्फ काबा की तरफ है? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ख्याल है, मैं मुस्तफ़ा का चेहरा सिर्फ किबला की तरफ है? जुमला सुनिएगा, उलमा बैठे इस बात की तायद करेंगे। मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ वल्लाह, हुज़ूर कसम उठा रहे हैं वल्लाह, मेरा नबी वैसे बात करे बड़ी ऑथेंटिक। ये वो नबी कसम उठाकर बात कर रहा है जो बात करते करते खामोश हो जाए। फरमाए सहाबा जानते हो पहले जबान से कौन बोल रहा था, अब इस जबान से कौन बोल रहा था? पहले कौन बोल रहा था, अब कौन? सहाबा अर्ज़ करें ये है आले सुन्नत का अकीदा। सहाबा अर्ज़ करते वल्लाहु आलमु व रसूलुहु, इसका इल्म या अल्लाह के पास है या उसके रसूल के पास है, या अल्लाह के पास है या उसके बोलिए रसूल के पास। ये आलमु बिस्सवाब ये किसी इंडियन मौलवी की इजाद तो हो सकता है, लेकिन सहाबा का अकीदा यही है, अल्लाह भी जानता है और उसका रसूल भी जानता है, उसका रसूल भी जानता है, मेरा मुस्तफ़ा भी जानता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कसम उठा रहे और मैं सहाबा जानते हो पहले लबों से कौन बोल रहा था, अब कौन बोल रहा है? सहाबा करते तुम जानो या तुम्हारा खुदा जाने। मेरे जुमला सुनिए, जुमला सुनिए, इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। आप तो इस जुमले पर अपना दिल निकाल कर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं दावे से कहता हूं। और जुमला सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा पहले लबों पर खुदा बोल रहा था, अब मुस्तफा बोल रहा था। खुदा बोल रहा था, अब मुस्तफा बोल रहा था। वो नबी के वल्लाह मुझे अल्लाह की कसम, मैं कहता हूँ कायनात में किसी के पास ऐसा तराजू है जो हमें तोल कर बताए कि ये फरमान है और ये कुरान है? बस एक ही तराजू है, ज़बान मुस्तफ़ा है। खुदा बोले तो कुरान बनता है, मुस्तफ़ा बोले तो फरमान बनता है। खुदा बोले तो कुरान बनता है, मुस्तफ़ा बोले तो फरमान बनता है। वल्लाह मुझे अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, बोलिए मुझे अल्लाह की कसम, मा यख्फा अलैया रकुअकुम। फरमाया जब तुम मेरे पीछे खड़े होकर रकू करते हो, मेरी निगाह से तुम्हारे रकू भी पोशीदा नहीं होते। मैंने कहा मौलाना आप जमात में खड़े हों
तकबीर उला कही हो, पीछे से नमाजी सारे चले जाएं, आपको तो खबर नहीं होती, लेकिन मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जो फरमा रहे मैं तुम्हारे रकू भी जानता हूँ। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई बंदा ये कह दे, वो जी कारी रफीक साहब ने यहाँ रहमे शाह में एक मौलवी साहब बुलाए थे, हुजूर ये जारी रुकन था ना रकू, कहीं हुजूर की निगाह पड़ गई होगी, हुजूर ने अगला जुमला कहकर मेरे नबी ने क़यामत तक की गुत्थियाँ सुलझा कर रख दी। फरमाया खुशू कौम, खुशू नाम है दिल की कैफियत का। फरमाया खुशू कौम, रकू ही नहीं जानता बल्कि दौरान नमाज तुम्हारे दिल के अंदर उठने वाले ख्याल भी नबी जानता है। आले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पे बैठ कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो बड़ी तवज्जो से आप समात कीजिएगा। वो ये है कि आज तक हमने तो यही सुना था मौलवियों से मिंबरों पे बैठकर, वो कहते थे अल्लाह की कसम, अल्लाह के अलावा दिलों के राज कोई नहीं जानता। मैंने कहा हदीस पढ़ो, अल्लाह के अलावा आप कहते कोई नहीं जानता, हम कहते हैं अल्लाह भी जानता है और अल्लाह की अता से मेरा मुस्तफ़ा भी जानता है, मेरा मुस्तफ़ा भी जानता है। मैंने ये बात की है कि मेरा नबी कहाँ तक देख सकता है। अगर इजाज़त हो तो इस पर मैं एक दो हदीसें पेश कर दूँ। सुभान अल्लाह। एक दो हदीसें पेश कर दूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज हुजूर इस्लाम ने ऐसे चेहरा उठाया आसमान की तरफ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने चेहरा ही नहीं उठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बायां पाँव भी आगे रखा, हुजूर इस्लाम ने दस्ते रहमत भी उठाया। किबला चौधरी साहब, मेरे नबी की जब निगाह उठी तो पहला आसमान नीचे रह गया, मेरे नबी की निगाह ऊपर, दूसरा भी नीचे रह गया, मेरे नबी की निगाह इससे भी आगे, तीसरा भी नीचे रह गया, मेरे नबी की निगाह इससे भी ऊपर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदा जन्नतुल मावा, सातवां आसमान नीचे, अल्लाह ने इससे ऊपर सिदरा और सिदरा के आगे अल्लाह ने जन्नत बनाई, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे रह गई। हुजूर के निगाह वहां से गुजरते ही जन्नत में गई, सिर्फ निगाह ही जन्नत में नहीं गई। हुजूर फरमाते हैं मैंने हाथ बुलंद किया और अंगूरों के गुच्छों तक चला गया, मैंने चाहा कि मैं इनको तोड़ लूं। हुजूर फरमाते अगर मैं तोड़ कर ले आता क़यामत की सुबह तक मेरे गुलाम खाते रहते, कभी अंगूरों के कुछ कभी खत्म ना होते, खत्म ना होते। मैंने गुज्जर खान रावलपिंडी के करीब, वहाँ गांव को बोलते हैं गिरा, वहाँ एक मन छोटा गिरा था, मैंने खिताब किया। खिताब के बाद अहले खाना ने खाने का एहतमाम किया था, मेरे जाने में कुछ ताख़ीर होगी, वो जो है बग़ैर किसी, वो कहते हैं कि सफ़र का वहाँ को मामन नहीं था, बताने वाला नहीं था, बड़ी मुश्किल से तलाश करके वहाँ पहुँचे। तो जब पहुँचे तो खाना बाद में, एक बाबा जी आगे कहने लगे माशाअल्लाह फरीदी साहब आपने बड़ा खिताब किया है, माशाअल्लाह बड़ा। बच्चे ये पुत्र खामोश हो जाओ, बंद कर दे बेटे, बड़ी ये वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बड़ी तवज्जो से। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ, बात आपको समझ आ रही होगी। वो बाबा जी कहने लगे मौलाना आपने बड़ा खिताब, माशाअल्लाह बड़ा प्यारा खिताब किया। मैंने कहा जी ये आपके बैठने की बरकतें थी। अच्छा आपने देखा जन्नत की कितनी बरकतें हैं? मैंने कहा जी। कहने लगे देखो हुजूर अगर तोड़ के ले आते क़यामत की सुबह तक गुलाम खाते, कभी ये गुच्छे ख़त्म ना होते, ये जन्नत की बरकतें हैं ना। मैंने कहा वाह बाबा जी वाह, आपको ये जन्नत की बरकतें तो नज़र आ गई, लेकिन उस हाथ की बरकत नज़र नहीं आई जो खड़ा ज़मीन पर है और जन्नत तक जा रहा है। मैंने कहा उस हाथ की बरकत का पता नहीं चला, उसके कमाल का आपको अंदाजा नहीं हुआ कि अगर हजरत जाबर के खजूरों के ढेर के ऊपर हाथ रख दे तो जाबर के कर्जे अदा हो जाए और खजूरों के ढेर में फर्क ना आए। उस हाथ की बरकत का पता नहीं चला है अभी तक। जो मेरा मुस्तफ़ा जो है वो अगर प्याले में रख देता है तो 1400 सहाबा पानी पी जाते हैं, मटके भर जाते हैं, जानवर पी जाते हैं। जी
मटके भर जाते हैं, लेकिन हजरत सी वकार वो पानी खत्म नहीं होता। मैं पूछना यह चाहता हूं कि बाबा जी जन्नत की बरकतों का पता तो चला है, उस मुस्तफा के दस्ते रहमत का पता नहीं चला। जो उंगली का इशारा करता है डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, उंगली का इशारा करता है आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर देता है। उस मुस्तफा पाकी हुजूर तवज्जो चाहूंगा, मैं तवज्जो चाहूंगा, बात जाया नहीं करना चाहता हूँ, शाहिदन हाजिर और नादिर पे बात करना चाहता हूँ। जहाँ तक ज़ौक़े सिमात मेरे नबी का है, कुव्वत सिमात काम करे वहाँ तक हाजिर है, जहाँ तक निगाह काम करे वहाँ तक नादिर है। आप तरह इमाम बारी से बचाएं। यहाँ मौलाना रफीक सब बैठे मेरे पास, मैं इनको हाथ लगाऊं बरकत के लिए तो मेरा हाथ तो इन तक जा रहा है। जनाब चौधरी सिलावत सब बैठे हैं, मैं इनको देख रहा हूं लेकिन हाथ नहीं जा रहा। वो पीछे साबरी साहब बैठे हैं, ये 456 से बड़े प्यार के साथ आए हैं, ये इन तक मेरी निगाह जा रही है, हाथ नहीं जा रहा। वो पीछे अहबाब बैठे, निगाह जा रही है, हाथ नहीं जा रहा। वो पीछे बाहर बरखुरदार बैठा है, उस पर मेरी निगाह तो जा रही, हाथ नहीं जा रहा। मुझे ये बताओ, ये निगाह का जाना मौलवी के अंदर कमाल है, मौलवी के अंदर कमाल है, हाथ का ना जाना ये मेरे अंदर ऐब है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को तो मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐब बनाया। अल्लाह ने तो मेरे मुस्तफ़ा को मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐब बनाया है, और वो मेरा मुस्तफ़ा हाय हाय जो खड़ा है जमीन पर, निगाह करे तो जन्नत तक, हाथ भी करे तो जन्नत तक। हम इसीलिए तो कहते हैं बाबा हम तो उस मुस्तफ़ा के नौकर हैं, उस मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, उस महबूब के खादिम हैं। हज़रत ज़ीवकार अरे जो ज़मीन पर बैठे निगाह करे तो जन्नत तक चली जाए, दस्ते मुबारक उठाए तो जन्नत के अंगूरों के गुच्छों तक चला जाए। हम इसीलिए यहाँ से बैठकर कभी मुश्किल आती है तो बारगाह मुस्तफ़ी में अर्ज़ करते हैं, जैसे आला हज़रत ने अर्ज़ किया आना फी यातशिन बसखा का यतम, ऐ गैसुए पाक, ऐ अबरे करम बरसिन हारे, रिम झिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तोहफा हो शुरुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। हम ये कहते हैं कि जब नौकर मेरे नबी का यहाँ से बैठकर दस्त बस्ता गुंबद खिदरा के सामने अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा पालना, इन्नना फी बहरी हम मिन मुगरकुन खुद यदी साहिलना अशकालना आमना कनाल, वहां से निगाहे करम भी फरमाता है और दस्ते रहमत के साथ अपने गुलामों की बेड़ियों भी बेड़ियों की तरह। हम तो बाबा हमें जब मुश्किल आती है तो हम तो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, बारगाह मुस्तफ़ी में अर्ज करते हैं। मैं बात आगे लेकर जाना चाहता हूँ लेकिन कारी रफ़ीक साहब का ज़ौक़ जो है वो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए कि बानी महफिल मार मुमताज़ अहमद कादरी साहब वो चूँकि उनकी निस्बत है साईं कुतुब पाक से, और वो जिनका मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ वो भी गदा हैं साईं कुतुब पाक के। हमें जब मुश्किल आती है तो हम हुजूर की बारगाह में ऐसे ही अर्ज करते हैं, असी आखने आजाद ज़मीन होमिन आजाद ज़मीन होमिन दौलतों जहानी होमी आजाद ज़मीन होमी जहानी तैनू जान के सावर दंदे छोड़े दिद्यानी कमली जाने के मैनो जलनी जाने के मैनो सबिना बल्ली जाने के मैनो
गल तेरे प्याले गल तेरे प्याले। इजाजत हो तो मैं एक दलील और पेश कर दूं कुरान से। नबी कहाँ तक सुनते हैं, कहाँ तक देखते हैं। मैंने कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पे कहने लगे रब्बी जुल जलाल मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हम कलाम हुए ना रब से, भाई कोई बात शात है तो कर ले आप, मैं फिर आगे बात शुरू करूँ। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने बगैर लाउड स्पीकर की इतनी देर आपसे खताब किया है, आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी खताब तो नहीं है। मैंने आज भी 2 खताब किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सुबह फिर अपनी रूटीन में हूँगा। अल्लाह ताला, ये काम बंदे की अपनी ताकत नहीं होती, ये हुजूर की निगाह से होते हैं। किबला कल जब मेरी तबीयत ऐसी थी तो कल रात का जो मैं आखिरी खताब करने लगा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आधी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गले के अंदर और आधी बाहर। लोग आपस में ना वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, ये क्या खताब करेगा जिसकी आवाज़ ही नहीं बाहर निकली। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात को शुरू किया। मैंने कहा बेटी बात ये है, हुजूर करम कर दें तो पत्थरों को भी बोलना आ जाए। फिर गला है इसका तो काम ही बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे 1.5 घंटा जो है मैंने बात किया। अब तवज्जो करें, मेरा स्टैमिना इतना थोड़ा नहीं है, मैं वैसे ही 2-2.5 घंटे खताब करने वाला बंदा। मेरा तो स्टैमिना ऐसा है। हज़रात तवज्जो, एक जुमला कहने जा रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए रब से। बच्चों को यार खामोश करवा देते, क्या बात है, आपकी जरूरी है बस खामोशी, ऐसे बस कहीं ये ना हो के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। ऐसे की जगह हकीकत शिमला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शहीद मिलादुन नबी मोहम्मद चारियर हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, खत्म नबूवत। हज़रात बड़ी तवज्जो चाहूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए, कलाम बड़ा मीठा था, शीरी था। कारी रफीक साहब बोले इनकी आवाज़ में बड़ा सरूर है। आपके यहाँ कोई नाख़वां बोले उसकी आवाज़ में बड़ा सरूर है, कोई और कारी साहबान तिलावत करे उसकी आवाज़ में बड़ा लूच है, और वो कानों में ऐसा एक सौत आता है, बंदा हैरान हो जाता है। क्या बातें, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें, ये आवाज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। जिसने कुल कायनात को आवाज़ें दी हैं उसकी अपनी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। जब उसने कलाम फरमाया तो मूसा अलैहिस्सलाम घुटने टेक के बैठ गए और कहेंगे वाह, जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है वो खुद कितना खूबसूरत है। हटा पर्दे, हिजाब हटा, शक्ल दिखा, मैं देखना। आवाज है मूसा लम तरानी, तुम नहीं। अच्छा ये बात उलमा समझेंगे क्योंकि फरमाया लम तरानी, तू नहीं देख सकता। लन यरानी के अल्फाज नहीं फरमाया कि मुझे कोई भी नहीं देख सकता है, फरमाया तरानी, तू नहीं देख सकता। पता चला कि कोई है जरूर जो देख सकता है। तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता, कलीमुल्लाह तू नहीं देख सकता। कौन है जो देख सकता है? सनतन दो देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ये मूसा निगाहे मुस्तफा देखे, निगाहे मुस्तफा देखे।
हजरात तवज्जो चाहूँगा, मैंने कोई तरन्नुम नहीं, कोई शेर नहीं पढ़ा, बस मैं चाहता हूँ कि मैं आयत का तर्जमा मुकम्मल कर लूँ। मैं शाहिदन पर बात कर रहा हूँ। शाहिदन, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को हाजिर और नादिर बनाकर भेजा। नबी कितनी दूर से सुनता है, कितनी देर से देखता है। रब की बारगाह में अर्ज़ हुए, मौला मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया छोड़ मूसा, तू नहीं देख सकता। और मैं नहीं मौला मैंने देखना है। और मैं नहीं मूसा छोड़, किस बात में आगे छोड़ दे, मैं तू नहीं देख, या अल्लाह नहीं मैंने देखना है। इधर इसरार इधर इनकार। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया मैंने नबियों की बात को मोड़ा कभी नहीं। अगर तू देखना चाहता है ना, उन्जुर इलल जबल, ये पहाड़ के ऊपर जो खड़ा है ना, इस पत्थर को वसीला बना। जो बात समझे मैं उसको मुबारक बात पेश करूंगा। इस पहाड़ मैं जुमला कहना चाहता हूं, हज़रात ज़ीवकार कलीमुल्लाह, अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर, उनको हुक्म हो वसीला बनाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दो चार चिल्ले लगाने वाला कहे मैं ट्रक मिलना चाहता हूँ। ओ भाई, कलीमुल्लाह को डायरेक्ट नहीं, तुम कैसे डायरेक्ट? उन्जुर इलल जबल, वो फरमा रहे पहाड़ की तरफ देखो, मैं तजल्ला डालूंगा, और हिम्मत हो तो देख लेना, ना हो तो वलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइका। हज़रत अल्लाह ताला ने तजल्ला डाली, मैं किससे पूछूं कि कितनी डाली, कितनी थी, कितनी देर डाली? आओ मैं इब्ने कसीर से पूछ लेता हूँ, जो मेरा भी है और उनका भी है, जो इमाम इब्ने तैमिया का शागिर्द है। इमाम इब्ने तैमिया का शागिर्द है, इमाम साबी का उस्ताद भाई है। इब्ने कसीर लिखते हैं अल्लाह ने कितनी तजल्ला डाली, फरमाते हैं सुई के नाके से करोड़वां हिस्सा थोड़ी। सुई के नाके से करोड़वां हिस्सा थोड़ी। मैं फिर कह रहा हूँ, सुई के नाके से करोड़वां हिस्सा। सुई का नाका जानते हैं? अम्मी आखे ना पुत्र मेरी निगे कमजोर है, ए धागा पा दे। एदी निगे एडी क्यों तेज है, कदे इधरों धागा लग जाए, कदे इधरों। फिर उससे भी करोड़वां हिस्सा थोड़ी, करोड़वां हिस्सा थोड़ी अल्लाह ने तजल्ला डाली। मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश। मैं क्या तर्जुमा करूं, बेहोश का करूं या मदहोश का करूं? चलो जो भी करना चाहे दोनों ही ठीक है। उलमा ने बेहोश का भी किया, मदहोश का भी किया। लेकिन हज़रात जुमला कहना चाहता हूँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब साबरी साहब आज ये जुमला नोट कर ले, दिल की तख्ती पर, आप निस्बत वाले बंदे हैं। जब तजल्ला अल्लाह ने डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश, जब होश आया तो चलने लगे। रब ने फरमाया किधर? या अल्लाह घर को, घर को, अच्छा घर को। नाना मूसा अलैहिस्सलाम, आपने मेरी तजल्ला का दीदार किया है, जो आपकी आंख में आंख डालकर देखेगा नबीना हो जाए। आंख में आंख डालकर देखेगा नबीना हो जाएगा। आपने ऐसा वाज, शायद मैं कहता हूँ कि पहली मर्तबा आपकी तबाह आजमाई हो रही हो। आपकी तबीयत पर जो है ना, मैंने जितना बोझ डाला है, आपकी मेहरबानी, आपने बर्दाश्त किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी मुकम्मल करूँ। हज़रात तवज्जो चाहूँगा, मूसा अलैहिस्सलाम आँख में आँख जो डालेगा वो नबीना हो जाएगा। या अल्लाह क्या करूँ? और मैं अपनी आँखों पे पर्दा करो, पर्दा करो, अपने हौसन के ऊपर पर्दा करो, बेनकाब न फिरो, वरना कितने लोगों के दिल जख्मी होंगे। पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ एक लोहे का टुकड़ा लगा, आपने ऐसे आगे किया तो वो पानी की तरह पिघल गया, पानी की तरह पिघल गया, पानी की तरह पिघल गया।
जब पिघला तो जुमला कहने जा रहा हूँ, हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह मैं क्या करूँ, कोई लोहे का तो हाल देख ही लिया है, क्या मैं अपनी आंखों के सामने पर्दा करूं। फरमाया कलीमुल्लाह, जो मेरे वलियों की, जो मेरे नबियों की, जो मेरे प्यारों की रिदा होती है वो अल्लाह के जलवों की अमीन हो। वाह वाह, आपने मेरी इस बात का जो है ना वो कीमत नहीं चुकाई, जोर से कह फरमाया कलीमुल्लाह, ये जो मेरे वली और नबियों की रिदा होती है ये अल्लाह के जलवों की अमीन होती है। अपनी ही चादर उठाओ, अपनी आंखों के सामने करो, वाह वाह, सुभान अल्लाह, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा, तो नूर बारी हिजाब में है। बस पर्दा किया तो दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मंदकल बाप, कौन? फरमाया आना मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूं। बोलने वाली कोई आम बच्ची नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी है, शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी है, जिसका नाम हजरत सफूरा है। सुभान अल्लाह, हाँ, हजरत सफूरा है। मैं यहाँ पर सिंदड़ा कहता तो आप कहते सुभान अल्लाह, जो भैरवी तिलंग हैं फिर आप बोलते, लेकिन वक्त की नज़ाकत ये है कि मुझे अब ज़रा जिस तरफ मैं चला हूँ वही कुछ करूँगा और कुछ नहीं करना चाहता, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आंखों के सामने पर्दा, दरवाजे पे पहुँचे, हज़रत बीबी साहिबा कहने लगी, हज़रत खैरियत तो है? ये पर्दे, ये बदले बदले आसार नजर आते हैं, घर की आबादी के अंदाज नजर आते हैं। खैरियत है जनाब, ये हमारा था, ले आपने लिया। ये पर्दा तो हमारा था, ले आपने लिया। हजरत खैरियत तो है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बस रास्ता छोड़ो, मैं अल्लाह का उसकी तजल्ला का दीदार करके आया हूँ। जुमला कहने जा रहा हूँ, अल्लाह की तजल्ला का दीदार करके आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमले कहे ना, बीबी साहब फट गई वहीं पे, कहने लगी वाह, रेगिस्तान के रेतले इलाकों का सफर मैं करती रही, रातों को उठ उठ कर मुसल्ले बिछाकर मैं देती रही, गर्म पानी कर कर के जनाब को वजू मैं करवाती रही, आज दीदार की बारी आई, अकेले अकेले हर जाई निकले हो। ये क्या हुआ, ऐसे कैसे? मैं आपने अकेले अकेले दीदार कर लिया। चलो कोई बात नहीं, तुझे तो देख नहीं सकते, तेरे देखने वाले को देखना तुझे तो देख नहीं सकते, तेरे देखने वाले को देखना चाहिए। देखना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी हट जाओ, ये जिद न करो, आंखें चली जाएंगी, चली जाएंगी आंखें। बीबी ने कहा कोई बात नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। बड़े इसरार के बाद, बड़े इसरार के बाद चौधरी साहब, ये जुमला आपकी नज़र, बड़े इसरार के बाद बीबी ने फैसला किया, हजरत आप ऐसे करें, मैं एक आंख पे हाथ रख लेती हूँ, दूसरी आंख से दीदार कर लेती हूँ। मैंने ये शौक के हवाला से ये अगली बात कही है, वरना मैंने अपना मकसद यहीं पे पूरा करके वापस हो जाना था, लेकिन आप थोड़ा सा ज़ौक ले लें। जब कहा मैं एक आंख पे हाथ रख लेती हूँ, दूसरी आंख से दीदार कर लेती हूँ, जब हजरत ने हटाया पर्दा, बीबी बेहोश, बीबी गई, बीबी बेहोश, आंख गई, बीबी को आया ना होश। उसने कहा लगा दे साकी, मैं मेरे मुंह से तेरे मैं काम से भला मेरा क्या बनता है? अरे तकबीर, रिसालत, उस्मत व शान मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा। नजर नजरे नयाज हुई, सर नजरे कदा हुआ, पहलू में एक दिल था, न जाने इसे क्या हुआ। सही ना, कोई बात नहीं, एक आंख तो क्या, दूसरी भी सदकड़े करती हूँ, मेहरबानी करो हटाओ पर्दा, मुझे देखने दो।
तफसीर के अंदर आता है एक बार नहीं 70 बार बीबी को आंखें मिली, 70 बार गई। और इमाम इब्न तैमिया ने लिखा, इब्न कसीर ने लिखा, वो कहते हैं कितनी दूर तक मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे जिसने करोड़वां हिस्सा तजल्ला की ज़ियारत की। फरमाते सुन ले सारे जवान सुन ले। नारे तकबीर जी, मुझे नारे रिसालत, ये हमारे बरखुरदार हैं और मुस्तकबिल की जनाब की ये ममार हैं तो हम अल्लाह मोहम्मद चार या हाजी ख्वाजा तफरी खुशामदीद आलम सालम मरहबा। मेरी बात को याद रखिए, मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ, बात खत्म होगी बल्कि। हज़रत इब्न कसीर फरमाते कितनी दूर देख सकते थे? 30 मील दूर, 30 मील दूर। समझ आ गई? काले पत्थर ते काली कीड़ी अंधेरी रात। मैं फिर जुमला लौटांदा पिया, 30 मील दूर काले पत्थर ते काली कीड़ी टुरी जांदी अंधेरी रात। मूसा अलैहिस्सलाम बेदे पयान। मैं क्या जरा सोच के दसना, जिन्ने तजल्ला दा करोड़वां हिस्सा देखे ओ 30 मील दूर काले पत्थर ते काली कीड़ी अंधेरी रात देख सकता है। मैं क्या मेरा मुस्तफा तो दूर ते नहीं गया, अर्शे मुअल्ला ते गया। अर्शे मुअल्ला भी मेरे मुस्तफा दे कदम च रह गया। फकाना काबा कौसैन, कौसैन की बुलंदियों पर मेरा मुस्तफा फायद हुआ। जब फायद हुआ तो फायद होकर मेरे मुस्तफा ने खुदा को देखा। मदीने की गलियों में आकर मक्का की गलियों में ऐलान किया, राई तो रब्बी फी आसान सूरती, मैंने अपने रब को बड़ी हसीन सूरत में देखा है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, जिसने तजल्ला देखी है उसकी निगाह का ये आलम है। जिसने मेराज वाली रात ज़ाते अल्लाह देखी है। तकबीर वो मैंने एक जगह पे मौलवी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली देखी। क्या हजरत तजल्ला? उन्होंने कहा नहीं तजल्ली। मैं कहा फिर तुहाडी तजल्ली और नहीं रब दा ते तजल्ला ही है। 30 मील दूर। मैंने कहा ये जिसने तजल्ला देखी उसकी निगाह का ये आलम है, मेरे मुस्तफ़ा की निगाह का आलम क्या? शाही तन अशहूद व शहादत हुजूर माल मुशाहदत इम्मा बिल बसर औ बिल बसीरा। मेरा मुस्तफ़ा जहाँ तक मेरे महबूब की कुव्वत सिमात काम करती है वहाँ तक कादिर है, जहाँ तक मेरे नबी की निगाह काम करती है वहाँ तक मेरा नबी नादिर है। हज़रत इसी वक़ार आगे चलकर जो है ना मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाने वाला, नदीरन डर सुनाने वाला, दाइयन इल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, बेइज़्न अल्लाह के हुक्म से सिराजम मुनीरा चमकता हुआ आताब है। अब ये आधी तकरीर फिर अगले साल इंशाअल्लाह करूँगा। दुआ करता हूँ अल्लाह आपसे मेरे पर ठीक है जी, खताब खत्म हो गया। एक शेर पढ़ देता हूँ हज़रत चार के आखिरी शेर। ये बात जो उन्होंने कही है वो करोड़ रुपए की है, लेकिन ये मेरे बड़े पुराने साथी हैं, लेकिन
ان کے بھائی نعمانی صاحب بھی، اور آخری شعر پڑھوں گا، اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ اور نہ ہی کوئی بندہ سفارش کرے گا، میں معذرت کے ساتھ آپ فرما دیں سے سانی تو ساڈم تو جیور لکھوئی سے سانی تو ساڈا سے سانی تو ساڈا اے تو جہور لکھوئی تیری وحدت کولوں ڈھولا کثرت ہوئی عہد احمد دے اندر، عہد احمد دے اندر کیا فرق رکھیوئی ڈولانی دیو اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنی بار میں رکھے.